Hello students. So in this lecture I am going to discuss few problems of trigonometry. So first question is, if 2 cos theta equals to x plus 1 by x, I need to prove that 2 cos 3 theta equal to x cube plus 1 by x cube. So as you can see, we know the value of 2 cos theta. From here I can judge the value of cos theta, which is half of x plus 1 by x. Now the point is, I need to find out the value of 2 cos 3 theta. So the thing is, as you can understand, I need to find out the value of 2 cos 3 theta, and in a direct manner I don't know what is the angle theta over here. So how to find it? So please think in this manner. If I need to find out the value of cos 3 theta and I know the value of cos 3 theta, what can I do over here? I can express cos 3 theta in terms of cos theta. That means multiple insurmountable formulas, 1/3 angle formulas. So I'm going to apply that formula. Cos 3 theta, it is actually 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Right? So I have expressed 2 cos 3 theta in terms of cos theta. Now place the values of cos theta over here. So it would be 2 times 4 half of x plus 1 by x whole cube minus 3 times of half of x plus 1 by x. So the result would be 4 1 by 8 x plus 1 by x minus 3 by 2 x plus 1 by x. Now I need to express this value as x cube plus 1 upon x cube. I have expressed this expression in terms of x. Now the thing is only a simplification over here. 4 by 8 is 1 by 2. I can take 1 by 2 common from the first term and second term. So 2 into 1 by 2 over here. Yes, over there it was cube. A plus b whole cube. Apply the identities. A cube plus b cube plus 3 ab bracket open a plus b. It is minus 3. Why? Because 1 by 2 have been taken as common. So it is x plus 1 by x. As you can see, x get cancelled out. So I have been left with x cube plus 1 upon x cube plus 3 times of x plus 1 by x minus 3 times of x plus 1 by x. So all these terms will also get cancelled out. So our final answer has been reduced to 2 cos 3 theta equals to x cube plus 1 upon x cube that we need to prove. I hope it is clear. So this is just an example of how to use these formulas, that is multiple and submultiple angles, right? So similarly we have another question. If tangent square A is known in terms of tangent square B, that is tangent square equal to tangent square B plus 1, I need to prove that cos 2A plus sin square B equal to 0. As I need to prove cos 2A plus sin square B equal to 0, so I would pick left hand side. अब पॉइंट ये आएगा कि इन दोनों का सम मुझे 0 के इक्वल प्रूव करना है, बट इश्यू ये है कि आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, वो तो पता नहीं, और एंगल ए और एंगल बी दो डिफरेंट एक्सप्रेशन है, तो इन दोनों का सम 0 कैसे आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल कैसे कर सकते हैं, ये बेसिकली एडिशन भी नहीं हो सकती क्योंकि दो डिफरेंट एंगल की फॉर्मेशन में. सो द रिक्वायरमेंट इज कि आपको इन दोनों में से किसी एक एंगल को दूसरे एंगल की टर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, आइदर एंगल ए को एंगल बी की टर्म में और एंगल बी को एंगल ए की टर्म में. और उसकी हेल्प के लिए आपके पास ये एक्सप्रेशन गिवन है. गिवन क्या है? टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू 2 टेंजेंट स्क्वायर बी प्लस 1. एक्सप्रेशन है टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 2 टेंजेंट स्क्वायर बी प्लस 1. इस एक्सप्रेशन का यूज करके मैं एंगल ए को एंगल बी की टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं. बट उसके लिए भी पहले ये एक्सप्रेस हमारे पास जो गिवन है वो टेंजेंट स्क्वायर ए की टर्म में होना चाहिए. अब यहां पे रोल आता है हाफ एंगल का फॉर्मूले का, और वो क्या था कि cos 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट ए.
cos 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट ए क्या है? इट वाज 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, ये है। नेक्स्ट है, इफ आई प्लेस द, ऑब्वियस सी बात है, ये करने के बाद क्या करना है, मुझे टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू प्लेस कर देनी है। तो टेंजेंट स्क्वायर की मैं अगर वैल्यू प्लेस करता हूं, इट इज 2 टेंजेंट स्क्वायर बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 tangent square b plus 1. Now, if I open the bracket, numerator would be minus 2 tangent square b, whereas the denominator would be 1 plus 1, 2, plus 2 times of tangent square b. Now, further अगर और ध्यान दें, I can take 2 common from both numerator and denominator position. So, 2 get cancel out. What is the value of 1 plus tangent square theta? 1 plus tangent square theta हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास का फॉर्मूला, इट वाज secant square theta. So it is minus tangent square b upon secant square b plus sin square b. Now इनका सम 0 तो और भी नहीं हो रहा है, तो सिंप्लीफाइड कैसे? एक्सप्रेस टेंजेंट in terms of sin and cos, secant 1 upon cos. So as you can see, cos square b can cancel out. Now I have been left with minus sin square b plus sin square b, and which will be equal to 0. So that's how I proved this question. I hope it is clear to everyone now. Now with more examples of half angle and 1/3 angles questions. So I have taken 2 questions from NCERT, question number 23rd, question number 24 of NCERT. So as you can see, in question number 23rd, I need to prove tangent 4x equal to this. Observations क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो एंगल है वो 4x की टर्म में है, और राइट हैंड साइड पे जो भी एक्सप्रेशन चाहिए हमें वो एंगल x की टर्म में चाहिए, and we do not know the direct formula of expression of 1/4 angles. तो ऑब्वियसली देखिए 4x का 1/4 x है, तो ये ऐसी कोई डायरेक्ट एक्सप्रेशन तो हमारे पास है नहीं। तो हमारे पास तो एनसीईआरटी के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 ही फॉर्मुलेस हैं, हाफ एंगल के फॉर्मुलेस एंड 1/3 एंगल के फॉर्मुलेस। सो हम कैसे 1/4 एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहां पर वो पॉइंट आता है यूजिंग दो फॉर्मूला जो कि एनसीईआरटी में है। तो अब उस वे से अगर मैं स्टार्ट करता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले मैं ये सोचता हूं कि 4x है, तो एक बार हाफ करूंगा तो 2x आएगा, 2x का हाफ करूंगा तो x आएगा, तो आंसर x की टर्म में चाहिए तो आंसर आ जाएगा। तो बस यानी कि आपको ये समझना है कि 4x पे हाफ एंगल के फॉर्मुले 2 टाइम्स लगाने हैं। तो left hand side tangent 4x, which is tangent 2 of 2x. First presentation. Now tangent 2 theta या tangent 2x, जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा है, it was 2 tangent x upon 1 minus tangent square x. Tangent 2 theta is 2 tangent theta upon 1 minus tangent square theta. ये हमने पढ़ा हुआ है, तो वही हमने अप्लाई किया। Having said आंसर नहीं आया, वो एंगल x है, यहाँ पे 2x है, तो इसका मतलब क्या होगा? फिर से हाफ एंगल। तो फिर से हाफ एंगल, तो टेंजेंट 2x को लिखा as 2 tangent x upon 1 minus tangent square x. Same manner in the denominator, it is 2 tangent x upon 1 minus tangent square x. क्योंकि स्केयर है तो यहां पे कोस के लग जाएगा उसको। नाउ वी हैव न्यूमरेटर इज 4 tangent x upon 1 minus tangent square x. In the denominator, I can see कि I can
subtract them by taking LCM. So what would be the LCM? Please see to this. Firstly, LCM would be 1 minus tangent square x whole square. 1 minus tangent square x whole square. तो यहाँ पे आएगा 1 minus tangent square x whole square. Then 2 tangent x का भी तो square था. So that means 4 tangent square x. Now as you can see 1 minus tangent square x and 1 minus tangent square x की टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी. तो I have been led. न्यूमरेटर में it is 4 tangent x. डिनोमिनेटर में ये पूरी एक्सप्रेशन एक को कैंसिल कर देगी तो आपके पास 4 tangent x और ये टर्म बचेंगी. अब इस पे a माइनस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी फॉलो की जा सकती है. दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. माइनस 4 टेंजेंट स्क्वायर x तो है ही हमारे पास. सो फाइनली आप इनका नेट सम करिए, आपका आंसर मैच करना शुरू हो जाएगा. यस, वन स्टेप एक रह गया है. ये 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर पोजीशन पे आएगा. 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x. सो योर फाइनल आंसर इज 4 टेंजेंट x into 1 minus tangent square x divided by 1 plus tangent x power 4 minus 6 times of tangent square x, जो कि आपको प्रूव करके बताना है. I hope it is clear. If it is clear, now next question पे आते हैं. Next question again आप सोचो तो उसी टाइप का कंसेप्ट है. cos 4x in terms of x. 1/4 एंगल हमें नहीं आते. हाफ का हाफ, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1, यानी कि ये मेथड हम फॉलो करने वाले हैं. क्यों? क्योंकि 4x का हाफ 2x करेंगे, 2x का हाफ x कर देंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड पिक किया cos 4x. कौन सा फॉर्मूला लगाने की बात कर रहा हूं कि हमारे पास तो cos 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले हैं. अब कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? देखिए यहां पे आके जब मुझे पता है कि मैं cos 2x यानी कि हाफ एंगल के फॉर्मूले लगाने वाला हूं, cos हाफ एंगल के हमने मल्टीपल फॉर्मूलेस पढ़े थे, तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे परफेक्टली आंसर दे सकता है एज फास्ट एज पॉसिबल. उसके लिए आप सोचिए कि cos 2x के आपने मल्टीपल फॉर्मूलेस पढ़े थे, उनमें से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें 1 विद अ पॉजिटिव साइन आता है. 1 विद अ पॉजिटिव साइन, एंड दैट वाज 1 माइनस 2 sin square x. वो फॉर्मूला था cos 2x is 1 minus 2 sin square x. यूजिंग दिस वन, अब ये एक्सप्रेशन को जरा चेक करिए. इट कैन बी रिटन एज 2 times of 2x. नाउ 1 minus 2 sin square 1 minus 2 sin square 2x, which is 1 minus sin 2x का होल स्क्वायर. 1 minus sin 2x का होल स्क्वायर. तो 2 sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई करिए. क्या फॉर्मूला है? 2 sin x cos x होल स्क्वायर. तो क्या एक्सप्रेशन है? 2 4 sin square x cos square x. 2 4 का 8, तो आपका आंसर आया 1 minus 8 sin square x into cos square x. यही आपको प्रूव करके बताना था. That is cos 4x equal to 1 minus 8 sin square x cos square x. Right? Checking one more question from NCERT, that is question number 25. Again, I do say one of the good question में से एक है ये क्वेश्चन. अगेन आप चेक करें, cos 6x को x की टर्म में एक्सप्रेस करना है. 1/6 एंगल फॉर्मूला नहीं किए तो 1/6 नहीं किए कोई बात नहीं, जैसे पहले कर रहे हैं ब्रेक में फॉर्मूले लगाते हैं. 6x से x डेवलप करना है. 6x के 6 के फैक्टर्स क्या हैं? 2 और 3, यानी कि एक बार 2x का फॉर्मूला लगेगा, एक बार 3x का फॉर्मूला लगेगा. हाफ एंगल एंड 1/3 एंगल फॉर्मूला. तो बस अब उनकी एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, अब उस पर काम करते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड इज योर cos ऑफ 6x. अब पॉइंट ये है कि 6x को x बनाना है, तो मैंने कहा हाफ एंड 1/3, इन सारी चीजों पे मुझे काम करना है.
तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कि मैं ये सोचता हूं कि मैं हाफ एंगल लगाना चाहता हूं। अब मैं अगर हाफ एंगल लगाना चाहता हूं तो हाफ एंगल cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अगेन कौन सा फॉर्मूला लगाएं? देखो एक्सप्रेशन पे ध्यान दो। वो एक्सप्रेशन किसकी टर्म में है? सिर्फ cos की टर्म में है। तो cos 2x का कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट करें? वो फॉर्मूला जो कि सिर्फ cos x की टर्म में आंसर देता है। और वो फॉर्मूला क्या था? इट वाज 2 cos x - 1। तो मैं भी वही एक्सप्रेशन अप्लाई कर रहा हूं यहां पे। तो cos 6x फर्स्टली कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ 3x। Now it is cos 2x. In whole of is your x. So applying this, it would be 2 cos square 3x minus 1. Why? Cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1. Next step. Cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1 की एक्सप्रेशन बनाई। अब क्या करना चाहिए? cos 3x का फॉर्मूला लगा दो। cos 3x का कौन सा फॉर्मूला? उसके लिए तो चॉइस ही एक ही, ये तो फॉर्मूला है। क्या था फॉर्मूला cos 3x का? 4 cos cube x माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos x। तो वो फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये क्या बन के आएगा? 4 cos cube x माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos x का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ब्रैकेट ओपन करिए, यू विल गेट योर आंसर। चेक करिए। 32 cos x पावर 6, 18 times of cos square x, 2 4 the 8, 8 3 the 24, 24 to the 48, 48 cos x पावर 4 माइनस 1। ये एक्सप्रेशन आपको बना के बतानी थी, राइट? सो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने जो काम किया वो ये है कि कन्वर्जन्स ऑफ एंगल्स इनटू दिस सम मल्टीपल एंगल्स, उसके हमने एग्जांपल्स किए। और हमने कहा कि हमें हाफ और 1/3 के ही फॉर्मूलेस पता हैं, बट उनको यूज करके हम 4 6x को भी x की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट? प्लीज प्रैक्टिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। दैट्स इट फॉर टुडे।